Philosophy and Religion has been organizing so many lecture series and academic program. So today we are going to have ICPR study circle lecture program, and our esteemed speaker is Professor D.N. Yadav, and the topic of his lecture is Environmental Ethics, Western Perspective. So before the formal start of the lecture, we do some ritual. And in this series, may I request the dignitaries, the esteemed speaker and head of the department for garlanding the bust of this founder of our university, Pandit Madan Mohan Malviya ji, and lightning of the lamp. Now, I request Vikas Pandey for Mangalacharan. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् यद्विश्वविस्मयकरं चरितं महीयः वाचस्पतेरपि गिरां सुतरां दवीयः प्रातः सदा सुमनसामभिवन्द्यनीयः वन्द्यस्य मे मदनमोहनमालवीयः वन्द्यस्य मे मदनमोहनमालवीयः हरिः ओम्। Thank you, Vikas. Now I request Vandana for Kulgit. मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या
की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों से काशी सुज्ञाशी बसी है गम के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी नए नहीं है ये ईट पत्थर है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर रचे हरि के भव्य मंदिर ये सर्व सृष्टि की राजधानी राजधानी यहाँ की पवित्र शिक्षा की बीके छात्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी वेद ईश्वर के साथ वाणी बने जिन्हें पढ़ के ज्ञानी थे व्यास जी यहीं पर ये ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी वो मुक्ति पद को दिलाने वाली सुधा यही फले फले बुध शंकर ये राज ऋषियों की राजधानी राजधानी सुरम्य धाराएं वरुणासी नहाए जिनमें कबीर तुलसी भला हो कविता का क्यों ना कर ये बाग विद्या की राजधानी राजधानी विविध कला अर्थ शास्त्र गणित आशा प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी ये मालवी ये 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 मालवी भक्ति ये ये शक्ति प्रकट हुई नवीन होकर ये कर्म वीरों की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी
Thanks, Vandana. Now it is time to felicitate our guest. So may I request our head of the department to felicitate Professor D.N. Yadav sir with garland and shawl. And now I request our head of the department, Professor Anand Mishra sir, for formal welcome address. Hari Om. Honorable Speaker, Professor D.N. Yadav, Convener Dr. Waleswar Prasad Yadav ji, scholars, students, and colleagues connected offline or online, I welcome you all in this ICPR Study Circle lecture on environmental ethics, Western perspective. Friends, this is the last lecture of ICPR Study Circle this session, and we are really fortunate that Professor D.N. Yadav, who was previously Pro Vice Chancellor of Nilambar Pitambar Das University, Palamu, is today going to deliver his lecture on environmental ethics, Western perspective. Friends, 12 years before, the department published a volume on environmental ethics, Indian perspective, and scholars from all over the country, some even from abroad, contributed in that volume. Though the volume was not circulated enough, still it got tremendous response from the scholars. We see the present lecture in that series. Maybe in coming years, we would be able to come with a volume on Western perspective of environmental ethics. I hope Dr. Baleswar Prasad Yadav ji, who was the contributor of the previous volume, and some other faculties would do that job. So Professor Yadav is a renowned scholar of logic and philosophy of science. Professor Yadav is an experienced scholar. Dr. Baleswar Prasad Yadav would give a profile of him.
but in fact, he is not unfamiliar to this department. It would be really very interesting to see how he formulates his subject. I welcome Professor D.N. Yadav once again in this department. I also extend warm welcome to Professor Geeta Manaktala, who is present online, Dr. Manoj Tiwari from Jharkhand, Dr. Jitendra Prasad from Hyderabad, and Professor Satish Chandubedi, Dr. Kalpana Yadav, Dr. Neeti Singh, Professor S.P. Pandey, Dr. Digvijay Misra from Wardha, and our friend Father Phillips, Dr. Rajkumar Singh. I welcome you all in this ICPR study circle lecture on environmental ethics. Thank you. Thank you, sir. Now, this has been the tradition of our department that before the formal start of any lecture, we read a brief bio note of the speaker. So, as we know that you all are well known about Professor Deep Narayan Yadav, sir, even though I would like to say some words of appreciation about him. Professor Deep Narayan Yadav, born in 1958, is MA and DPhil from Allahabad University and DLit from CCS University, Meerut. Apart from this, he has also earned LLB degree from Allahabad University. He was nominated twice for Commonwealth Fellowship, UGC awardee, and for awardee, and he has been head and professor of the Department of Philosophy, DDU, Gorakhpur University, Gorakhpur. He has been former member of governing body of Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, member of Executive and Academic Council of DDU University, Gorakhpur, and life member of World Philosophy Congress. And he has attended the sessions also. He has been recently retired from Professor of Philosophy, and before uh, his retirement, he also served as Pro Vice Chancellor of Nilambar Pitambar University, Palamu, Jharkhand. Apart from this, his main area of research lies in logic, philosophy of science, Western philosophy, and recently environmental ethics. Professor Deep Narayan sir is a prolific writer in philosophy, and he has contributed many articles and attended national and international seminars in philosophy as well as the allied area. He is, after retirement, highly engaged in working on some academic works as well as serving various positions in government of India as well as the state government from time to time as he is asked to do. So now may I request Professor Deep Narayan sir to come here and to deliver his lecture. Professor Yadav sir. Thank you, Dr. Parashar. On this occasion, let me address Dr. Anand Misraji, Head of the Department of BHU Philosophy Department, Dr. Professor S.P. Pandey, and Dr. Baleshwar Prasad Yadav ji, other faculty members, Neeti, Alpana naam hai kya aapka? Alpana, and father, I forgot his name, Professor Satish Dubey ji,
and my dear research scholars, PDFs, and students. Everything is fine which has been said about me, but let me make it very clear that I am not expertise. I have no expertise in environmental philosophy. I have decided to speak on this topic because it is my interest. As you know, we, the people of philosophy, previously we don't have interest or we don't deal with environmental philosophy. But through the time, it was needed that the philosophers, it is the first responsibility of philosophers to deal with these problems. As you know, biology, botany, geography, even sociology, they deal with the factual aspect of environmental problem. But it is our prime duty of the philosophers or the philosophical community to think about the conceptual or the theoretical aspect behind the environmental problem, whether the positive or aspect or negative aspect of the problem. So, whatever due to my interests, I have read time to time, and sometime I think this is the reality in the seminar. As you know, we have to attend the seminar and present the paper. So time to time, I had to attend the seminars and present the paper. During that period, I came to go through the environmental philosophy and environmental ethics. So let me start whatever I know on this topic. As you know that there is a vast and very deep level literature in Indian tradition. And if you go through our main texts, we find different places where environmental elements of environmental ethics and also philosophy find. But in later period, the people of West and the philosopher, particularly theologians even, they have worked and they are working much more than we, the people, which in ancient time have had worked, they are doing. So therefore, I have taken this topic in the perspective of Western philosophy. I think it will be better for we all and for me also to speak mix Hindi and English. As we know, this is the basic skill of human being to read commonly anything and to count the numbers. So two terms are used. The minimal required for human skill is literacy and numeracy. Literacy means you must be in a position to read. Numeracy means we must be positioned to count the number. कम से कम इतना हम जानते रहें. But with the time going on, there was a very famous American ecologist, Garrett Hardin, who had introduced another term in a similar way, that is ecology. Although ecology, environmental study, environmental ethics has been in practice, particularly in ancient India and even today, but this term has been first time was introduced by Gordon Hardin. Ecology means the understanding of a home, that is nature. And we come to know different scholars, different Western philosophers, theologians who have dealt with this problem. इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर हम मिस करके बात करें, और जब इस बात को हम सोचते हैं, why this problem rises or arising in our society or the nature. So I will focus only on the tendency or the approaches which human being adopts.
First of all, in the light of Western philosophy, Kantian, hedonistic philosophy, utilitarian philosophy, if you think about the approaches, most all of you are the student of philosophy. You have, yeah, you well knowing about the term teleology and ontology, deontology. Actually, there are two main approaches with which we deal with the nature. Deontological जो concept है, the prominent philosopher was H. Kant. और जो teleology की बात हम करते हैं, तो most of the utilitarians, hedonists, materialists, evolutionists, they have dealt with the problem of nature teleologically. I'd like to present two of the examples to clarify these two approaches. एक उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा, कुछ लोगों ने दिया भी है, वैसे हम बना भी सकते हैं और भी उदाहरण। कोई यात्रा समुद्र में दो लोग कर रहे थे, एक बहुत धनाढ्य आदमी था, he was fond of encouraging the sports, lot of his personal money he used to spend for the promotion of sports. बहुत धन लिया हुआ जा रहा था, और एक काउबॉय, एक और भी उसके साथ एक आदमी और जा रहा था, दोनों जा रहे थे, और बीच में because of some unavoidable circumstances वो व्यक्ति जो पैसा लिया हुआ था वो मरने के करीब था। उसने कहा कि भाई प्रॉमिस करो कि ये पैसा ले जा करके आप जो गेम्स का जो फेडरेशन है उसको आप दोगे फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्समैन। ले लेता है नहीं राइट, बट when he come back to his city or his place, so there was a crisis the world was facing, war, hunger, मतलब भूखमरी का शिकार पूरा लोग रहे थे। और ये हुआ कि if this money is utilized for the remove the crisis of war, hunger, it will be more utilized, क्योंकि खेल को देने पर, उसको देने के बाद कुछ लोग ही लाभान्वित हो, मतलब यूटिलिटेरियन पॉइंट्स ऑफ व्यू से उसने कहा कि क्यों ना हम इसको पैसे को वर्ड हंगर के लिए यूज करें। ये दो चीजें आ रही हैं, टू अप्रोचेस। वन इज टू कीप आवर प्रॉब्लम, दिस इज द एथिकल व्यू, टू कीप आवर प्रॉमिस कंप्लीट, हमने प्रॉमिस किया है उसको हम पूरा करें। दूसरा कि इन व्हाट वे दिस मनी विल बी यूटिलाइज मोर एंड मोर। ये दो अप्रोचेज हैं। इसमें जो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है, डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि भाई आपने उससे बात किया है, आपने प्रॉमिस किया है, तो ऑनेस्टली यू हैव टू डोनेट दिस मनी टू द स्पोर्ट बोर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स मैन। बट टेलियोलॉजिकल अप्रोच says that it is better to use for the welfare of the hundred lakhs of people who are near dying starvation. दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, इसी तरह के दो यात्री, one of them was very important scientist and very beneficial in life was for the to cure the people. दोनों जा रहे थे, वहां भी थोड़ा सा खाना था और ड्यूरिंग सेलिंग वो खत्म होने वाला था, और इतना था कि केवल एक आदमी बच सकता था। दोनों खाएंगे तो भी दोनों मरेंगे, तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, भूख लग जाएगी। कोई एक खाए तो एक के लिए पर्याप्त है, वो है पूरा समुद्र पार कर जाएगा, बच जाएगी जान। तो विचार यहाँ फिर आते हैं, either to follow the rules of principle of equality and distribute the remaining food among the both, or to follow the utilitarian view to save the life of the scientists who can save the lives of so many people
एक मर जाए मरने दीजिए, इसको बचाया जाए। यहाँ भी 2 अप्रोचेज है और हम समझ सकते हैं कि क्या डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है, निरपेक्षवादी क्या अप्रोच है, और व्हाट इज प्रयोजनवादी टेलियोलॉजिकल। जो डियोंटोलॉजिस्ट होगा वो कहेगा, क्या कहेगा वो, टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग इक्वली अमंग बोथ। टेलियोलॉजिकल जो होगा, जो टेरियन व्यू होगा, वो कि भाई साइंटिस्ट को बचाया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाएगा। And this is the principle, Trillian principle, maximum good of the maximum number. तो ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए लिया, और भी उदाहरण हम बना सकते हैं। ये अप्रोचेज हमें काम करती है जब हम नेचर को डील करते हैं, नेचर से ट्रीटमेंट करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, हालांकि बहुत से ऐसे विचार आएंगे, 2-4 नाम हम लेंगे जिसमें दोनों में डाइकोटॉमी है, कोई कहता ये व्यू ठीक है, कोई कहता ये व्यू ठीक है। लेकिन इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि जो कांट की अप्रोच है डियोंटोलॉजी का, और उसके बहुत फेमस डाइकोटॉमी है, आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं फिलॉसफी में, डियोंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजी का। और दोनों के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने द बेसिस फाउंडेशन लॉजिक और द सपोर्ट ऑफ देयर व्यूज। लेकिन जो हम अगर सोचें तो हम वो यहाँ भी मिल जाएंगे हमें कि नहीं भाई, हमको तो एक प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन आज का जो युग है, जो परिवेश है, भाई जिससे ज्यादा जिसका फायदा हो वो काम करना चाहिए। इस तरह से दूसरी समस्या आती है कि जो प्रकृति के मूल्य है या जो संसाधन है, उसी के आलोक में हम बात करते हैं कि प्रकृति का क्षरण हो रहा है, प्रकृति का संवर्धन कैसे हो, हाउ टू प्रोटेक्ट द नेचर, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब के क्या कारण है। वहां भी अगर देखें तो कुछ सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रवृत्तियां आती हैं हमारे सामने, आप सभी सुने होंगे। एक तो ये है कि क्या ये सारी दुनिया, सारे संसाधन, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर मींट फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन वेलफेयर, मैन इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर। क्या मनुष्य के लिए सारे संसाधन, सारे प्रकृति के संसाधन बने हुए हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं अदर देन ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन वेलफेयर। दूसरी बात कि क्या नेचर का भी अपना कोई मूल्य है, प्रकृति का भी मूल्य है, हैव नेचर एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन। ये 2 चीजें चलती हैं। हमारे इंडियन लिटरेचर में भी ये सब चीजें हैं, पहले से विद्यमान है, कई तरीकों से उसके स्टडी किया गया है, किया जा रहा है। आज भी इस आलोक में, इन थेरीज के इन लाइट में, आलोक में हम अगर पढ़ें तो यहाँ सब चीजें उपलब्ध है। 2 तरह के सिद्धांत आते हैं, आप लोग सुने। एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू आता है, मैन सेंटर मोरालिटी या मैन सेंटर वैल्यू। दूसरा है बायोसेंट्रिक या बल्कि इकोसेंट्रिक कहिए, इकोसेंट्रिक नेचर सेंटर वैल्यू। The value, the people who believe that all the resources of nature itself is made for the welfare of human being or men, they are known to be the follower of anthropocentric view. But the second view, ecocentric, the nature itself has its value, its importance. Without the preservation or conservation, without the protection of nature, how can we take benefit from it? तो 2 तरह के विचार हैं। मैं स्वयं मानता हूं, आप भी इस बात पर आएंगे कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो इसमें ये मुख्य रूप से 2 सिद्धांत आएंगे कि मूल्य क्या है। ये कंट्रोवर्सी इसमें है, इस पर विवाद होता है, बात चलती रहती है कि सब कुछ हमारे लिए है। आज ह्यूमन टेंडेंसी है, खास करके पहले वेस्ट में हुआ करती थी, अब हमारे यहाँ भी बढ़ रही है, मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज में भी। इस संदर्भ में मैं बता दूं आपको
कई बार दोष देते हैं ना, कोई अमेरिका कहता है कि हम सबसे ज्यादा प्रोलेटरियन इंडियंस हैं या इधर के लोग हैं, हम कहते नहीं वो हैं। आई वुड लाइक टू रेफर अ थियोलॉजियंस नेम लिन वाइट, एक नाम थियोलॉजियंस का था। being a Christian, he himself has accepted that Christianity, please don't mind, I am referring a scholar. Most of the harm was made by Western country. Or he has mentioned, even the Christianity, he used the word Christianity. उसके कारण क्या है कि with the development of science, for our sake, for exploitation in form of facilities from the nature, West at most exploited the nature. I am not telling this. I am just referring a theologian. मैं इस विवाद में नहीं चाहता हूं, बोलता हूं कि मैं तो सोचता हूं कि आज के देश में तो एक बात ही वेस्ट और ईस्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि अब ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इट इज नॉट लोकल और स्टेट वाइड और नेशनल इवेंट, इट हैज बिकम ग्लोबल. इसलिए it is futile, it is worthless, meaningless to say that West had done such and such dangerous thing, West in the East had done such and such good thing or bad thing, because it is not proper today's context to divide the whole world into West, East, North and South, because the entire world now is treated as a village, the whole globe. एक भी पेड़ हम उखाड़ते हैं तो हम समझते हैं हमने अपने पेड़ तो उखाड़ दिया, बट इवन पॉइंट डेसिमल कुछ भी फर्क पूरे एंटायर एनवायरनमेंट पर पड़ता है. एक पेड़ लगाने से क्या होगा, कहने का मतलब कि कहीं भी हम काम करते हैं, ये हमारी भौतिक स्थिति है, इट इज आवर यू कैन से फिजिकल लिमिटेशन दैट आई कैन प्लांट एट आवर प्लेस ओनली, इट कैन नॉट डू इन the entire world or the entire country, the entire state. इसलिए इसका मोटो ही है कि think globally and act locally. हम स्थानीय स्तर पर काम कर सकते हैं क्योंकि हमारी सीमा है, लेकिन हम सोच सकते हैं पूरे ग्लोब के स्तर पर. एक भी पेड़ उखाड़े तो हम समझें कि केवल हमारा नुकसान नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है. तो यह चीज हमारे सामने आती है, इसका मोटो क्या है. ये सिद्धांत जब सब आते हैं, जो मुख्य रूप से हमने कहा, इस संदर्भ में इसको अगर हम और क्लासिफाई करें, कई लोगों का नाम आता उसमें है, तो एक प्रॉब्लम और आती है इसमें कि व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. जब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली वी मिसअंडरस्टैंड दैट ह्यूमैनिटी is confined only to human being. But I think humanity is a term, ethical term, moral term, that whatsoever you say, it not only covers the human being, I think the entire being, sentient or non-sentient, yeah, sentient, human and non-human, all the plants, all the elements, all the sentient and non-sentient being. Immunity not only has meaning for human being, it is also necessary or important meaning for other being also. Even non-sentient being who are least sensitive, who lack sensitivity, lack consciousness, region, no meaning of region for them, but even they have at least you can say संवेदना अगर थोड़ी भी है. तमाम जीव जंतु रूप में आते हैं, मछलियां आती हैं, उनको भी ह्यूमैनिटी का जो टर्म है, मैं मानता हूं कि वो सबको कवर करता है. ह्यूमैनिटी मानवता हम जरूर कहते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई मनुष्य नहीं है, वो संवेदनशील व्यवहार है तो इंटायर सेंसियंट एंड नॉन सेंटिएंट या जीव अजीव जितने भी हैं, ह्यूमन बीइंग, मानव और मानवीयता सबके लिए मिल करता है. इसलिए
the philosophers or the environmentalists differ as to the question whether moral treatment or the morality is confined only to human being or also to other beings also. इस तरह से देखें तो 3-4 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। जैसा हमने कहा कि एक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, सेंसियंस सेंट्रिक व्यू है और बायोसेंट्रिक और इकोसेंट्रिक। बायोसेंट्रिक व्यू is the, you can say, the best of all because it reconciles all the theories together. Anthropocentric, ecocentric and biocentric, egalitarian हम बात करेंगे। ये सब सिद्धांत आते हैं और इनके मूल में और भी प्रवृत्तियां हैं, जैसे स्वार्थवादी प्रवृत्तियों की बात हमने कहा, ये आप कह सकते हैं। स्वार्थवाद आप सभी जानते हैं, जब हम हेडोनिज्म की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म की बात करते हैं, इथिकल हेडोनिज्म की बात करते हैं। When you talk of psychological hedonism, the prime philosopher is Hobbes. आप जानते हैं साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म क्या कहता है? Man by nature is selfish. Man seeks pleasure and avoids pain. This is the instinctive character of human being, which is cause of environmental problem also. यह मनुष्य में स्वभावता है। By nature, the human being is of this nature. Is selfish, always seeks pleasure and avoids pain. इसलिए अपने काम के लिए तो ये तो हेडोनिस्टिक व्यू हुआ, और इसके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वभावतः हम जो स्वार्थी हैं वो इसके मूल में भी ये भी प्रवृत्ति आती है हमारे यहाँ। लेकिन फिर उसके साथ अल्ट्रिस्टिक व्यू भी है। बेंथम का ही, मिल का भी, जो दोनों है रिफाइंड व्यू है। बेंथम का ग्रास है, मिल रिफाइंड की बात करते हैं। सिजिविक रेशनल हेडोनिज्म की बात करते हैं। तो इवन एमंग द हेडोनिस्ट यूटिलिटेरियंस देयर आर मेनी फिलोसोफर who advocate hedonism but in a refined and better form, in a rational way. We should think of our interests. We should try to complete or to earn the things, to use the nature for our interest, but rationally, with a rational justification to some extent. उस सीमा तक हमको यूज करना चाहिए। इसलिए जो एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं वो प्राय आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोसेंट्रिक आर कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, यूटिलिटेरियंस एंड सम ऑफ देम आर डियोंटोलॉजिस्ट आल्सो, जो ये मानते हैं कि द फर्स्ट राइट ऑन द नेचर इज ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का सबसे ज्यादा अधिकार नेचर पर है, प्रकृति पर है, एंड उसे प्रकृति का दोहन अपने इंटरेस्ट के लिए करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो इथिकल हेडोनिज्म है वो बात करता है कि वी आर्ट टू फुलफिल आवर इंटरेस्ट, वी आर्ट टू बट विद द व्यू ऑफ अल्ट्रुइज्म, दूसरे का हित को देखते हुए करना चाहिए। यह व्यू जो हमको रोकता है अंधाधुंध प्रकृति के दोहन के लिए। तो इसलिए यह बोलता देखा जाए प्रकृतिता यह सही है, एंथ्रोपोसेंट्रिक भी प्रकृतिता सही है, जैसा कि साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म कहता है, जैसा कि साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, वह यूज करना चाहता है, प्रकृति को दोहन करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के लिए। इसलिए लेकिन इसमें से कुछ डियोंटोलॉजिस्ट भी हैं, सिद्धांततः अगर ये चीज आती है तो कहते ठीक है करना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट तो हैं ही, यूटिलिटेरियंस हैं, यूटिलिटेरियंस होंगे बिकॉज मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर की बात है, लेकिन मैक्सिमम गुड तो कम से कम है इसमें, इवन इंडिविजुअल्स मैक्सिमम गुड। दूसरा जो सेंडियन सेंट्रिक व्यू है उसमें दोनों चीजें आती हैं, और उसमें कुछ फिलोसफर्स आते हैं, उनका नाम आगे लेंगे, जैसे बेंथम स्वयं है। वो कहते हैं कि जो मोरल या जो प्रकृति का दोहन है, प्रकृति का रिसोर्स है, दे आर मींट ओनली नॉट मींट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, दे हैव मीनिंग फॉर अदर देन ह्यूमन बीइंग
सेंसियंट एंड नॉन सेंटिएंट बीइंग सबके लिए मीनिंगफुल है। और इस तरह से अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू की बात हम करें, एक फिर दूसरी विचार आता है उसमें, कंजर्वेशन। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू advocates the conservationist view, according to which the nature should be protected for the human interest, human good. वो एंथ्रोपोसेंट्रिक इसलिए ह्यूमन गुड की बात करता है। नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड नॉट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, फॉर all the society, for all the being, for all the sentient non sentient being, only for human good. लेकिन जब सेंसिएंट बीइंग की बात आती है, जो सेंसियनिस्टिक जो फिलॉसफी आती है, जिसमें पीटर सेंगर और पेंथम आते हैं, दे extend the scope of natural sources. They are not meant only for human being, but they are have meaning also for animals also. Animal right की बात एक अलग की जाती है, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी उसकी है में, उस पर थोड़ा सा मैं आऊंगा लास्ट। इसके बाद फिर जब इकोसेंट्रिक बायोसेंट्रिक की बात आती है, जिसमें टेलर आ जाते हैं, पॉल टेलर हैं, ये लोग इनमें से अधिकांश जो हैं इस बात को मानते हैं कि डिओंटोलॉजिस्ट हैं। बेसिकली जी आर डिओंटोलॉजिस्ट लाइक कांट, बट दे डिफर फ्रॉम कांट ऑन द क्वेश्चन ऑफ रेशनल एंड मोरल ट्रीटमेंट। अभी सब मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो बायोसेंट्रिक हैं, they are mostly deontologists and they believe in preservationist philosophy. Preservationism says that holds that the nature should be protected, natural sources should be protected, but it should be preserved for the future, even for our future or for future generations also. And any conservationism and preservationism slightly differ. Conservationism, nature should be protected either for individual human being, for the whole of the society. Preservationists hold that nature and nature should be preserved. पानी आदि की बात हम करते हैं, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम साधन संसाधन की बात करते हैं, प्रिजर्वेशन की बात। Even for ourselves, myself, my future time, or for other humanity. तो इसलिए ये प्रिजर्वेशनिस्ट हैं। इसके बाद जब प्रिजर्वेशन की बात हम करते हैं, उसमें फिर दो तरह के विचार आते हैं। एक जो प्रिजर्वेशनिस्ट हैं, एक इंडिविजुअलिज्म की बात आती है, फिर होलिज्म की बात आती है। जो डिओंटोलॉजिस्ट जो इंडिविजुअलिस्ट हैं या बायोसेंट्रिज्म को मानने जो इंडिविजुअलिस्ट है, उसमें मुख्य रूप से दो लोग आते हैं। एक अल्बर्ट श्वाइजनर है, इनका बड़ा फेमस लेक्चर है रिफरेंस फॉर लाइफ। दूसरा पीटर सिंगर भी आते हैं, उसमें एनिमल्स लिबरेशन की बात करते हैं। इन लोगों का कहने का मतलब कि ओवरऑल ह्यूमन बीइंग इज इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स वो मानते हैं इस बात को कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं दैट हैव मीनिंग फॉर ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग शुड बी प्रीफर्ड। जो होलिस्ट हैं वो मानते हैं नो द नेचुरल रिसोर्सेज हैज यूजफुलनेस, हैज मीनिंगफुल फॉर ऑल द इंटायर ह्यूमन बीइंग या इंटायर सेंसिएंट एंड नॉन सेंसिएंट बीइंग। इस तरह से कई सिद्धांत हमारे सामने आते हैं जो वेस्टर्न कंट्री के या वेस्टर्न थियोलॉजियंस हैं, जो पूरे हेलेनिस्टिक फिलॉसफी को, ट्रेडिशन फिलॉसफी को जोड़ते हैं। जो हमारी इथिक्स की जो टेंडेंसीज है, टेलियोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, इस सारे सिद्धांतों के आलोक में, इन द लाइट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थ्योरीज which you use often to read and study or teach in our classes, there is nothing new as far as environmental ethics of philosophy is concerned. The problems already coming, but we have to
look them in the light of philosophical theories to conceptualize the problems and to put before us the solution. इस संदर्भ में थोड़ी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा ह्यूमैनिटी की बात. ह्यूमैनिटी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, इट इज most of the time, even today also, we don't think of animals. तमाम दार्शनिक हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं. पीटर सिंगर की बात हमने कहा, बेंथम भी बात करते हैं. पीटर सिंगर तो स्पेसिफिकली एनिमल्स राइट. इसका मतलब ये है कि नाउ विदाउट, जैसे हमने कहा कि इकोलॉजी, जो इकोलॉजी की बात कहा कैरेट हार्डन ने, कि इकोलॉजी इज द फुलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एथिक्स. एथिक्स अलग नहीं है. एंड वी शुड नॉट थिंक about our own human being also, but the entire being of the universe of the world, और जिसमें एनिमल्स प्रॉमिनेंटली आते हैं. बात आती क्या एनिमल्स के भी कोई राइट है कि नहीं है? एनिमल्स को भी मोरल ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं? डज एनिमल डिजर्व मोरल ट्रीटमेंट, डिजर्व सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट और नॉट? बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कुछ थ्योरी आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या हम उनको, उनके अधिकारों की बात करें? हम कहाँ करते हैं. अब चीजें हो रही हैं, आप जानते हैं कि राजनीतिक, हमारे यहाँ राजनीति नहीं थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, और इस समय भी मेनका गांधी काफी उस पर बात करती रहती है समय समय पर. जितने राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक हैं, उनकी बात मैं नहीं करूंगा. मैं केवल उनके उस पक्ष की बात कर रहा हूं जो समय समय पर पशुओं की बात करती है. कहीं भी कोई अपने कुत्ते को मार रहा है, कहीं भी कोई हत्या कर रहा है इनोसेंट एनिमल्स की, तो लोग समय समय पर बात उठाते हैं. लेकिन बट इट हैज बिकम द नीड ऑफ आवर टू थिंक अबाउट द राइट्स ऑफ द एनिमल्स. लेकिन व्हाट आर द फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट? टाइम है, अभी हम इसकी बात कर लें. बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप समझेंगे. Some of the theologians or philosophers or environmentalists introduce 4 or 5 kinds of theories regarding animal rights and the relationship of या treatment of human being या men towards the human, towards animals. 3-4-5 थ्योरी की बात मैं करूंगा. नो स्टेटस थ्योरी की बात कही जाती है, जनरली आप पढ़ेंगे पाएंगे कहीं कहीं, मैंने कि the animals have no status as equal as human being. Descartes was the first philosopher who has set forth this philosophy. उसके मूल में क्या है? His philosophy, mind body relation. Descartes holds that animals have no right of moral treatment because they have no soul. Soul, human being soul. सब जब mind body की बात हम करते हैं, soul की बात करते हैं, तो we talk about the soul of human being. तो on that basis, animals have no right, therefore they have no right for moral or sympathetic or humanitarian treatment. दूसरी बात क्या कहते हैं कि they don't feel pain and pleasure. अब जो भी कहते हो, हम, मैं स्वयं नहीं समझ हूं, अभी कुत्ते को मारिए तो चिल्लाने लगता है, फील नहीं करता है. और आगे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत सी चीजें हैं जो आप, हमको दिखता साफ साफ फील करते हैं, लेकिन वो कंसेप्चुअल उनकी पोजीशन है, उनकी आप मतलब कांट्स in the light of, in the framework of his philosophy, who is talking, Descartes is talking. But the good thing is that we are thinking about animals are about, not animals are about all other sentient and non-sentient, non-human being की विषय में बात तो कर रहे हैं. Now people are talking all over the world about the being other than human. चूंकि, और दूसरी बात,
there is no question of self consciousness. Self consciousness नहीं है, soul नहीं है, therefore they don't feel pleasure or pain. उनको दुख दर्द नहीं होता होगा, इसलिए मीट मछली लोग खाए जा रहे हैं। मतलब ये हम सोचने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा हूं कि हम क्या करें, मैं स्वयं को भी नहीं कहता क्या करें, मैं केवल कह रहा हूं कि ये इसके पीछे बिहाइंड फिलॉसफी क्या है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर नो स्टेटस के बाद एक और थ्योरी आती है, इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन थ्योरी, जिसमें कांट और थॉमस एक्विनास मुख्य रूप से आते हैं। उनका कहना है कि खास करके कांट, ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट मतलब एनिमल्स हैव नो राइट ऑफ मोरल ट्रीटमेंट, बट व्हाट इज द ग्राउंड? Aquinas also hold the same view. Animals are sentient or non-sentient being other than human being have no right of moral treatment. But let us think what is the ground? क्या ground है? तो करने से होगा ना, फिलॉसफी है तो लॉजिक होनी चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो आप जानते हैं जो एक्नास हैं वो इमोर्टलिटी ऑफ सोल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि men, not the animals, are endowed with immortal soul. कांट क्या कहते हैं कि men, not the animals, endowed with reason and will, यानी immortal soul केवल मनुष्य को है और उनको नहीं है। This is the ground, therefore they don't deserve moral consideration, moral obligation. कांट का कहना मतलब only human being endowed, केवल उसके पास ही केवल reason and will है, therefore they don't deserve. यानी immortality of soul and rationality, reason is the ground for discriminating against animals, discrimination between men and animals. कांट जानते हैं कि हार्ड कोड रेशनलिस्ट था, वो थे, वो कहते थे ओनली रेशनल बीइंग डिजर्व मोरल ट्रीटमेंट। वो डेकार्ट तरह नहीं कहते हैं दुख दर्द नहीं होता। भाई कांट तो हार्ड वो बात ही करते हैं। आप पनिशमेंट की बात करिए, जब रेट्रिब्यूटिव थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें भी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी की बात करते हैं, जैसे मॉडिफाइड है, रिगरस थ्योरी की बात करते हैं, मतलब द पनिशमेंट शुड बी गिवन इन proportion to the crime or the reward in proportion to good work. आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ, आंख के लिए आंख निकाल लो, दांत टूटे तो कोई दांत तोड़ लो उसका। मतलब इन प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूं, ये सिद्धांत कहता है जो रेट्रिब्यूटिव का रिगरस थ्योरी है, इसलिए कांट को रिगरस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो कहने को तो कांट वाज सो स्ट्रिक्ट इन हिज द एप्लीकेशन ऑफ हिज थ्योरी और मोरल लॉ। वो कहते हैं कि ओनली रेशनल बीइंग माने ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग नहीं कहते हैं, दिस इज वेरी स्पेसिफिक थिंग, ही सेज रेशनल बीइंग नॉट ह्यूमन बीइंग। वो ये भी कहते हैं कि इवन इफ मैन, ह्यूमन बीइंग हु एक्ट्स इरेशनली डज नॉट डिजर्व मोरल ट्रीटमेंट। मनुष्य भी अगर इरेशनली काम कर रहा तो वो भी नैतिकता का अधिकारी नहीं है। और इवन इफ इरेशनल बीइंग जैसे चिंपैंजी है, डॉल्फिन है, दे एक्ट रेशनली, दे ट्रीट हिम मोरल ट्रीटमेंट, दे डिजर्व मोरल ट्रीटमेंट। तो कहने का मतलब ग्राउंड, स्ट्रिक्ट ग्राउंड है रेशनैलिटी। ह्यूमन बीइंग इफ डज नॉट एक्ट रेशनली डज नॉट डिजर्व मोरल ट्रीटमेंट, सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट। पशु भी है अगर एक्ट, जैसे चिंपैंजी की बात करते हैं या डॉल्फिन, कुछ मछलियां छलियां होती हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, बंदर होते हैं, समटाइम दे एक्ट रेशनली, then they also deserve moral treatment, sympathetic treatment, humanitarian treatment. ये आपकी दूसरी बात क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? कि एक्चुअली कहते हैं कि एनिमल्स, we have no obligation, direct obligation to animals. We have obligation only to think of the interest of human being. लेकिन कहते हैं but in order to punish the animals, we just become habitual.
to do the crime, to do the cruelty, और habitual हम हो जाते हैं, we just become accustomed to inflict the penalty or cruelty, और वह cruelty फिर मनुष्य में होती है, हम मनुष्य के साथ भी करने लगते हैं। अगर हम ऐसा करने लगे पशुओं के साथ तो ऐसा हम आदत बन जाएगी, हम मनुष्यों के साथ भी करने लगेंगे। इसलिए कहते हैं दिस इज इनडायरेक्ट, नॉट वी आर डायरेक्टली ओब्लिगेटिंग, वी हैव नो डायरेक्ट रिलेशन टू एनिमल्स बट इनडायरेक्टली। और वो भी क्यों? फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। लोग क्राइम ना करें, क्रूरल्टी ना करें, ताकि आदत बन जाए तो मनुष्य के ऊपर भी ना करें। अल्टीमेटली बोथ आर थिंकिंग अबाउट द ह्यूमन इंटरेस्ट। तीसरी सिद्धांत आता है इक्वल स्टेटस थ्योरी, बट नेचुरली दे वुड थिंक दैट मैन एंड ह्यूमन बीइंग एंड animals have equal status. They should be equally treated. टैम रीगन एक थियोलॉजियन को एनवायरमेंटलिस्ट हैं, टॉम रीगन, TOM-REGN, वो स्टांच सपोर्टर ऑफ दिस व्यू। वो मानते हैं कि नहीं, there must be equality in order to distribute the resources, in order to give the treatment. Man or human being and animal being are same. इसी तरह से एक और व्यू आता है जिसको आप कह सकते हैं कि ऑब्लिगेशन कंसिडरेशन, इक्वल कंसिडरेशन थ्योरी कह सकते हैं। वो भी इसी बात को कहते हैं, इक्वली कंसिडर किया जाना चाहिए सबको, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 नाम आते हैं। एक बेंजामिन का नाम आता है, एक कोई वॉन डी वीर करके है नाम। सब वेस्टर्न एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये सभी ये कहते हैं कि भाई कंसिडरेशन, यानी कि the interests of human being, animals being, or all the sentient and non-sentient being, their interests should be taken into account when you think of humanity, या sympathy, या kindness, whatsoever you want to provide them. There must be equal consideration, both the human being, animals, and other sentient and non-sentient being. उनकी बातों करते हैं। एक और थ्योरी की बात करती है, वो तो एक्चुअली थ्योरी नहीं है, फोर्थ थ्योरी, फिफ्थ है, मैं समझता हूँ कि एक्चुअली स्प्लिट लेवल थ्योरी। कुछ वहां सिद्धांत ले लिया, कुछ उसका ले लिया, कुछ उसका ले लिया, इस तरह की बातों करते हैं। और उसमें एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, इसे समाप्त करूंगा। उसमें भी इसी तरह का उदाहरण दिया गया है या मिलता है मुझे। 2 लोग या एक पूरे कैप्टन पूरे जहाज को लेकर जा रहा है, और वो क्या होता है, जो समुद्र में बचाने के लिए होता है, से किट होती है ना तैरने के लिए, जहाज जो है अंत में डूबने लगता है, और लोग ट्यूब जैसा होता है, कुछ समय लगता है उस तरह का, उसको लेकर के लोग बचते हैं। कुछ लोग डूब जाते हैं। कैप्टन भी अपने बूढ़े माँ बाप को, कुछ लोगों को, अपने वाइफ को, सबको लेकर के एक ट्यूब ले लेता है, और तमाम लोग डूब जाते हैं, 1-2 लोग बचते हैं। He was repeatedly requested to adjust 2 or 3 people more instead of his dog. कोई कुत्ता भी ले चल रहा था, कहा कुत्ते को भी मुझे बचाना है, भले कोई और ना आ पाए। मतलब he was giving priority to his dog. 2-4 लोगों की जान भले चले जाए, लेकिन बट नेचुरली हम यही कहेंगे भी कुत्ते को हटाइए, हम दूसरे लोगों को एडजस्ट करिए वहां। बट अल्टीमेटली he denied and saved the life, his life, wife, father, some other people along together with his dog. और कुछ लोग डूब के मर गए, लेकिन नहीं माना। इसके बाद जांच बैठी। जांच में ये कहा गया कि भाई ये ठीक किया उन्होंने। अब स्प्लिट लेवल थ्योरी क्या बात है, यहाँ पर देखा जाए तो कांटियन फिलॉसफी जो बायसेंट्रिक रिलेटिविटी की बात करते हैं,
या उसको वैल्यू नहीं दी जा रही है। लेकिन प्राइम रीगन का जो सिद्धांत है, इक्वल कंसिडरेशन, या उसके पहले जो नो स्टेटस थ्योरी का या इक्वल स्टेटस थ्योरी की बात कही जाए, उसकी बात कही जाए कि भाई कुत्ता हो चाहे आदमी हो, दोनों बराबर हैं और कुत्ता हमारे लिए बहुत प्रिय है, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जो कमेटी बनाई गई, कमेटी gave the decision and discharged the captain from the charge. लेकिन कोर्ट में मुकदमा चला, उसको सजा मिली कि उसने कुत्ते के बदले, लेकिन सिद्धांततः एज फार एज प्रिंसिपल इज कंसर्न, थियरी इज कंसर्न, कॉन्फिडेंट या कन्विक्शन इज कमेंट इज फॉलो। इस उदाहरण से लगता है कि कभी किसी सिद्धांत को लेकर के बात की जाती रही है। कहने का मतलब कि ये कुछ सिद्धांत आपके सामने मैंने रखा जो एनिमल इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, यानी कि नाउ इन्वायरमेंटल फिलॉसफी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी लोकल प्लेस और एनी डिस्ट्रिक्ट और एनी स्टेट or a nation, but the entire world is included when we talk about the environmental ethics and environmental philosophy, या environmental ethics particular। और दूसरी बात की नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एक सीधा सवाल है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो वेल, मैन इज प्राइम लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ इन दिस वर्ल्ड, most of the things are all of the things are meant for human being, but how can it be possible without saving the nature? This can be possible only if you save the nature also. To exploit or to use the natural resources to some extent, अपने जीवन को खतरे में डाल करके आप देख रहे हैं, सब तमाम बता करने की जरूरत नहीं है। गर्मी बढ़ रही है, कितना टेम्परेचर बनारस का हो गया 40-44, इलाहाबाद में रहता हूँ 45-47 हो गया, कई जगह 47-48 हो गया। तो ये सब जब हो रहा है, सब जल रहे हैं लोग, तो अब सब सावधानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये सारी प्रिंसिपल दे आर वेरी रिलेवेंट when you think of the continuous going problems of environment related to environment, environmental degradation, environmental crisis. These are going on time regularly or continuously. Therefore, these kinds of theories and thinkers' thoughts are very important in the light of today's crisis of environment or earth or whatsoever we say all over the world. तो ये कुछ मैंने, इस पर तो बहुत कुछ है चीजें, लेकिन एक तरह से संक्षेप ही मैंने किया थोड़ा थोड़ा करके कि क्या क्या अप्रोचेज है हमारे, क्या क्या टेंडेंसीज है हमारे, विच एक्चुअली वर्क बिहाइंड आवर बिहेवियर while treating with the nature and natural resources, using the resources, and what is the scope of moral consideration, what is the scope of moral treatment, or what is the scope of environmental ethics. Environmental ethics is not different from the traditional ethics or the objective ethics, but you can say this is a development. Yeah, you can say the fullest extension of the traditional ethics. उसी की extension है, not different from that. और इसकी बड़ी जरूरत है और कंटिन्यूसली हमको सोचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो कुछ थोड़ा वो संक्षेप में मैंने रखा आपके सामने, मुझे लगता है वाइवा आप अभी करना होगा। आप लोग इसमें से कुछ बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और चर्चा करना चाहें तो बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म।
जी जी। देखिए ऐसा है कि इसमें एक चीज, एक पक्ष मैंने छोड़ दिया, अभी याद आया, डीप इकोलॉजी का प्रश्न मैंने छोड़ दिया, एक्सपर्ट को छोड़ दिया, बहुत बड़ा इसका जो थ्योरी है, और मुझे ध्यान ही नहीं आया, मैं चला आया। तो लिविंग की बात करते हैं, एक्चुअली इकोलॉजी को आप पढ़िए जानिए, हमारे इंडियन फिलोसफी में भी है। इसमें एक नॉर्वेजियन फिलोसफर है आर्ने नाइस, उसने एक मूवमेंट चलाया था, शैलो एंड डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजिकल मूवमेंट, कॉन्सेप्ट वेस्ट में आया, लेकिन ऑलरेडी आप देखिए हमारे भगवत गीता में, हमारे यहाँ वेदांत में और बुद्धिज्म में सब चीजें आती हैं। और आर्ने नाइस ने स्वयं गीता के कुछ श्लोक याद नहीं है कोट किया है, जहां पर नेचर कैसे मनुष्य से मिलती है। स्पिनोजा का जो पैंथेइज्म है, स्पिनोजा का, उन्होंने स्पिनोजा को रेफर किया है, गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड। और भगवत गीता का जो भगवान कृष्ण का विश्व रूप है, ये सारे उदाहरण नाइस ने कोट किया, नॉर्वेजियन वेस्टर्न फिलोसफर होकर के। हम तो साइंस पढ़ाई हमारे लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। तो गंगा को लिविंग यूनिटी मानना कोई बुरा नहीं, क्योंकि पूरी नेचर ही लिविंग यूनिटी है, नेचर हमारे अंदर है। और वो एक ही बात कहते हैं डीप इकोलॉजी में कि टू कनेक्ट आवर सेल्फ विद आवर नेचुरल होम, नेचर इज आवर नेचुरल होम, टू कनेक्ट नेचर विद आवर हार्ट एट आवर कॉन्शियस लेवल, चेतना तक जोड़ने की जरूरत है। हम आप देखिए जो प्रकृति में खुल करके रहता है, प्रकृति से जुड़ता है, उससे कोई समस्या नहीं होती है। आज हम दूर होते जा रहे हैं तो एसी की, कूलर की तमाम जरूरतें पड़ रही हैं। तो डीप इकोलॉजी का एक प्रश्न है जो आपके प्रश्नों का जवाब है, जिसको मैं छोड़ दिया, ध्यान नहीं आया, मैं चलते चलते आलू करना था लेकिन आ गया। तो नेचर हमसे अलग नहीं है। इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता, वो भी देखिए बात करना, लेकिन इतना कर दिया। ये प्रकृति को जब हम अलग समझने लगते हैं, जो वेस्ट का कंसेप्ट रहा है कि टू क्रिएट द डाइकोटॉमी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। नेचर हमारी शत्रु है, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, ये तो सतुता है, सतुता है, ये सतुता नहीं है, बल्कि दीज आर द आउटकम्स ऑफ आवर बैड एक्शंस और नेगेटिव एक्शन जो हम करते जा रहे हैं, उसके परिणाम है। बाढ़ आ गई तो प्रकृति विरोधी हो गए, ऐसा नहीं है, सूखा गई प्रकृति विरोधी हमारे विरोध कर रही है। यह जो भावना है, जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट था, वह अब वहाँ भी दूर हो रही है, हमको भी दूर करने की। हम तो प्रकृति पूजा ही का मतलब इंडियन का किया गया है, शासन किया गया है। तो ये जो कही गई बात नेचर की, और अब हम पास में आ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो चीजें करना पड़ा जो कि पहले से सब चीजें हैं। तो इसके जो डीप इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज दैट गिव्स द आंसर टू अ क्वेश्चन। रही बात एनिमल राइट्स की, तो एक चीज और आप जानते हैं कि जैसे कहा गया ना कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड आर नेचुरल सोर्सेज मीन फॉर ह्यूमन बीइंग। इट इज ह्यूमन बीइंग who first of all uses natural sources and human being who has the responsibility to take care of them also. कुत्ता रख रहे हैं तो कुत्ते मतलब बुद्धि है नहीं, कुत्ते को पाल रहे हैं, ठीक है, तो कुत्ते की जिम्मेदारी बिल्कुल लेना चाहिए। एनिमल राइट का राइट मतलब जो जैसे कांट वो कह रहे हैं, टेक्नास की बात कही, इमोटिव सोल एक के पास है, एक पास रीजन और विल है, रीजन और विल उनके पास नहीं है, लेकिन संवेदना तो है, भूख तो है, प्यास तो है, शारीरिक जरूरत तो है, तो कौन पूरा करेगा? तो कुत्ते को हम न दें, गाय को न खिलाएं तो घूमते घामते खा लेगी कुछ, ठीक है, और रोगी हो जाए या रोग हो तो दवा ना करे, कौन करेगा? हम तो अपना, इसलिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर देन ह्यूमन बीइंग हु आर लिविंग सराउंडिंग टू अस, इसलिए गलत नहीं। और बताइए यादव जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और बहुत दिनों के बाद आप व्यवस्थित मंच पर दिखाई दिए और मैंने कोशिश करके ज्वाइन किया आपको। क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? मैं आलोक टंडन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई बताइए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने
पर्यावरण के संकट का जो अध्ययन था उसको अपने अध्ययन को और विस्तारित किया है, और बहुत सारी बातें आज आपने कही, लेकिन कुछ बातें जो हैं मैं देखता हूं कि जो हमारा दार्शनिक समुदाय है वो एकदम से उनसे कन्नी काट जाता है। जैसे कि जब हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ये एक तरीके का ह्यूमैनिटी, ये एक तरीके का बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होता है। सवाल उठता है, क्या हमारे यहाँ जो इस समय सड़क पर ठेला लगा रहा है, जो मजदूर काम कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? अगर है तो क्या वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है? यहीं पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो एक थ्योरी अक्सर बातचीत में छूट जाती है वो सोशल इकोलॉजी की है, और उसकी चर्चा ही नहीं होती। मरे बुकचिन उसके बड़े फिलोसफर हुए हैं, और उन्होंने ध्यान दिलाया कि हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग जो मनुष्य में जो प्रभुत्व पाए हुए हैं, जिनका वर्चस्व है, वो सारे लोग दूसरों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए जो कुछ करते हैं वो एक सामाजिक समस्या है, सोशल सिस्टम की समस्या है। उनके प्रॉफिट के लिए जो जो कॉरपोरेट है, जो पूंजीपति है, जो राज्य के अध्यक्ष या राज्य की जो विकास का मॉडल है, वो सब गाइड उससे होता है। वो कॉमन मैन, ह्यूमन बीइंग आप कह लो, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो उससे जिम्मेदार भी नहीं। तो इसलिए जब तक हम उस सिस्टम के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्चुअल इंटरेस्ट का जो आधार है उसको नहीं तोड़ते, तब तक हम शायद इस समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ सकते। और इसीलिए इथिक्स की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें 100 साल से करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हर साल इसके सम्मेलन होते हैं, और इवन कार्बन एमिशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी जो है वो सन 50 सन 60 तक के लिए खिसकाने के लिए सारे लोग जोर लगाते रहते हैं। तो वो जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हित हैं, उनसे टकराए बिना हम कैसे इसका हल कर सकते हैं? तो यहीं पर सवाल उठता है कि क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या केवल इथिकल समस्या है, या ये अब एक राजनीतिक समस्या बन गई है? ये एक पहला सवाल है मेरा। दूसरा छोटा सा सवाल ये उठता है कि अगर ये राजनीतिक समस्या है तो सीधी सी बात ये है कि इससे जो राज्य जो विकसित और मॉडल लेके एक पूंजीवादी मॉडल की बात कर रहे हैं, उनसे इसका हल ही संभव नहीं है। तो क्या किसी मतलब जो काउंटर सोशल मूवमेंट्स हैं, इनके बगैर काम चल सकता है? फिर यह भी सवाल उठेगा जो आपने बहुत जोर शोर से उठाया कि नेचर जो है वो हमारे को गलतियों से ही हम पर हमला करता है, और ये बड़ा वेस्टर्न कंसेप्ट है नेचर के खिलाफ खड़े होना। मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा पेंच है। सदियों से भूकंप, बाढ़, बीमारी, ये सब प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, और अगर मॉडर्न साइंस का विकास नहीं होता, इत्तेफाक की बात है कि वो यूरोप में हुआ, लेकिन क्यों हमने उसको अपना लिया? क्योंकि वो इफिशियंट है इन सब से लड़ने के लिए। इसलिए ईस्टर्न वेस्टर्न का जो ये कंसेप्ट हम क्रिएट करते हैं और अपने जीवन में उसको जरा भी नहीं उतार पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति जो है वो हर वक्त जो है हमारे लिए उदार नहीं है। प्रकृति हमारे लिए बहुत आक्रामक और बहुत हमारे लिए विनाशकारी भी रही है। तो इसलिए एक तरीके का रोमांटिक कल्पना लेके चलना प्रकृति को लेके, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और यदि नहीं है तो फिर हमारा सारा जो ये प्रयास है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक ही होगा। लेकिन यहीं पर सवाल जो आपने बहुत विस्तार से उठाया और बड़ा सुंदर ढंग से उठाया, एनिमल राइट्स का सवाल उठता है कि एनिमल राइट्स अगर हम स्वीकार लें, किन्हीं भी आधारों पर स्वीकार लें, मेरे ख्याल से तो एंथ्रोपोसेंट्रिक आधार ही सही होगा कि मनुष्य को अपने भविष्य की रक्षा के लिए एक
इकोलॉजिकल बैलेंस की जरूरत है संसार में, और उसके लिए जरूरी है कि उसकी जो स्पीसीज हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, और भी तमाम फ्लोरा एंड फौना है, तो उस सब की रक्षा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि उस एनिमल राइट्स को एक्सरसाइज कौन करेगा? क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई नदी, पर्वत, पेड़, कुत्ता या कोई और जानवर अपनी एक्सरसाइज करने आ सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो इन एनिमल राइट्स को एक्सरसाइज करने का मैकेनिज्म क्या होगा, इस पे भी आप कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं इनको नहीं एक्सरसाइज करने के लिए आगे आता है, तब तक ये केवल एक काल्पनिक व्यवस्था ही है। धन्यवाद। धन्यवाद टंडन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, मैंने सोशल इकोलॉजी की बात नहीं की, मुझे याद आ एक बार मैंने सोसाइटी की बात कही थी, और जिस इकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, सोशल इकोलॉजी की बड़ी अच्छी किताब है उनकी, और मैंने कभी पढ़ा था, उतना टाइम नहीं था। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई असहमति नहीं है। अभी उन्होंने कुत्ते की बात कही तो मैंने यही कहा कि सारे रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा दोहन करने वाला मनुष्य है। एक उसकी अपनी स्थिति है, लेकिन उसको केयर करने के लिए या उसको ध्यान देने के मनुष्य ही है। प्रकृति ये मनुष्य ही है जिसको, जैसा कि कांट की बात हमने कहा था, उसी को रीजन और विल आदि की पावर है, ये नेचर ने दिया उसको। वह स्वयं प्रकृति का दोहन करे एक सीमा तक, या अपने कल्याण के लिए उसका रिसोर्सेज को अपनाए और वही उसकी रक्षा भी करे। तो चाहे मछली की बात आपने कहा, पशुओं की बात कहा, मनुष्य ही वैसे ही है। कई बात देखिए, इसका एक और भी प्रॉब्लम है, जैसे हमने कहा कि हम अगर सोचें तो नेचर की बात है तो नेचर मैकेनिकल होती है, तो जैसे काम अपने आप जो होता है। इसकी एक और भी समस्या है, उस पर हम नहीं जाएंगे, कि नेचर के साथ कभी डूइंग नहीं होता, मनुष्य के साथ डूइंग की बात कंसेप्ट आता है। नेचर में तो जो कुछ हैपन होता है, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि चाय पक रही है। हमारे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी इस पर बड़ी बात करते थे। एक दिन उन्होंने बोला था इस पर, बात तो हम लोग भी जानते हैं, कहें कि भाई हम लोग कहते हैं चाय पक रही, कैसे कहा चाय पक रही कि चाय पकाई जा रही है? चाय अपने आप पकती है? जब पहाड़ अपने आप गिरते हैं तो पहाड़ गिर रहा है, लेकिन हम जो खोद रहे हैं तो हम गिरा रहे हैं। चावल पक रहा है, पकाया जा रहा है। कहने का मतलब एक छोटा सा उदाहरण ये है कि प्रकृति जो कुछ हो रहा है, स्वतः जो घट रहा है, उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम उसके डायरेक्शन को जरूर चेंज कर सकते हैं। नदी बह रही तो हम उसको बांध बना सकते हैं, उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, नदी को रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन जो कुछ कर सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ही कर सकता है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और रही बात की क्या सोल्यूशन है, मैं मानता हूं कि जन जागरण जरूरी है, और इस हमें पर्यावरण चेतना की बात हम करते हैं। पर्यावरण चेतना तो स्वतः आनी चाहिए, उसी स्वार्थ बात लोग नहीं करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, कुछ फूकते हैं, दिमाग नहीं आती बात। तो यह जन जागरण करने से कुछ कार्यक्रम चल भी रहे हैं गवर्नमेंट के, कुछ सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इससे ही दूर होगा। और अब ये कहा जाए कि सबको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, सभी जानते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि सचमुच से सबको समझना चाहिए, और उम्मीद करिए कि सब होगा। धन्यवाद। हाँ, प्रश्न पूछेंगे सर? हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक है, नीति जी अभी पहले से कर रही थी, फिर पांडे सर भी पूछ लेंगे। प्रणाम सर। आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा था, और आपने लगभग सभी जो जरूरी थियरीज हैं एनवायरमेंटल एथिक्स से जुड़े हुए और थिंकर्स हैं उनके बारे में बात की। और सुनते हुए मुझे लगा कि एक दो चीजें मिसिंग थी, जिसमें से एक को आपने अभी कवर कर लिया, डीप इकोलॉजी अर्नेनेस का। और मुझे लगता है सर, अगर एनवायरमेंटल एथिक्स की बात हो रही है तो एल्डो लियोपोल्ड का लैंड एथिक्स थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप थोड़ा उस पर बोलेंगे तो सर अच्छा रहेगा। ये तो एक रिक्वेस्ट है। मेरा प्रश्न सर, एल्डो लियोपोल्ड का लैंड एथिक्स एल्डो लियोपोल्ड का ना? यस सर। अब उससे बेटा सब कुछ है, हम बोल ही नहीं पाए सर थोड़ा सा बस बच्चों को अगर आप बताएंगे। ये तो रिक्वेस्ट है सर। एक प्रश्न मेरा है सर, मैं प्रश्न अपना पूछ लेती हूँ। इकोसेंट्रिक जो लैंड एथिक ही है, इकोसेंट्रिक जो कांसेप्ट है लियोपोल्ड। जी सर। एक जो मेरा प्रश्न है सर, बेसिकली आजकल जो बहुत डिबेट चल रहा है, बहुत पहले से था, गांधी जी के समय से ही था,
वो जब इंग्लैंड में गए थे तो इस तरीके के वो जो कम्युनिटीज थी ज्वाइन करते थे जहाँ पे कि वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म का झगड़ा होता था, और आज इस पे बहुत मुखरता से बात हो रही है, न सिर्फ फिलोसफी में या एथिक्स में बल्कि सोशल फिलोसफीज के डोमेन में भी लोग बात कर रहे हैं, साइंस के डोमेन में भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो सर ने अभी कहा, आलोक टंडन सर ने, कि मॉडर्न साइंस जो है वो बहुत एफिशिएंट है प्रॉब्लम से लड़ने का, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जिसके लिए वार्निंग दी थी गांधी जी ने कि मॉडर्न साइंस ने ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। जितने बड़े पैंडेमिक्स आए, बर्ड फ्लू हो या कोविड हो या कुछ भी, ये जो जबरदस्ती का ब्रीडिंग चल रहा है, मीट प्रोडक्शन चल रहा है या एग प्रोडक्शन चल रहा है, उनकी वजह से जो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करेगा मॉडर्न साइंस या वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। ऑल्सो ये जो सर वेजिटेरियनिज्म के जो पक्षधर हैं जो बता रहे हैं कि वेजिटेरियनिज्म में जाएंगे तो एनवायरमेंट का फायदा होगा, और उसको काउंटर कर रहे हैं नॉन वेजिटेरियनिज्म वाले जो बता रहे हैं कि कैसे लैंड हमारे पास उतना सफिशिएंट ही नहीं है कि हम सारे लोगों को खिला सके, इसलिए मीट प्रोडक्शन जरूरी हो गया है हमारे हेल्थ के लिए या हमारे न्यूट्रिशन के लिए। सो ये जो झगड़ा है सर, इसको वेस्टर्न अप्रोच में अभी कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और एनवायरमेंटल एथिसिस्ट का क्या कंसर्न है, रिस्पॉन्स होगा इसको लेके, ये मेरा प्रश्न है सर। थैंक यू। देखिए, लैंड इसी की बात तो जरूर कहा उन्होंने, मैंने समय न रहने से याद दिमाग में नहीं है बात, कोई लिखित तो था नहीं, लेकिन एक्चुअली जब हम इकोसेंट्रिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो एक्चुअली नेचर की बात करते हैं तो लियोपोल्ड की लैंड एथिक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो है रॉल्सन का कॉन्सेप्ट है, तमाम लोगों का कॉन्सेप्ट में छूट गया जो। और दूसरी बात, एक्चुअली ये सब पढ़ने की बात है, समझने की बात है, फिर उतारने की बात है। जो हमने बात कही थी, जो बहुत सबका मूल जो है वो है आपका बायोसेंट्रिक एग्लिटरिज्म, जिसमें बिल डिवाल्ट हैं, जॉर्ज सेशन ने काम किया है, और अंत में पॉल टेलर ने बहुत अच्छी व्याख्या उसके दी है, उन्होंने इसको किया है। यह वास्तव में सबका रिकंसिलेटरी व्यू है जो बायोसेंट्रिक है, दोनों होना चाहिए, इक्वलिटी की बात मानते हो। जितने सिद्धांत की बात हमने कहा जो हमारे दिमाग में, सबका सोल्यूशन उसी में है। और जब तक ये कहते भी हैं, जैसे डियोंटोलॉजिस्ट भी मानते हैं, एगलिटेरियन भी, एगलिटेरियन माने समानता की बात करते हैं जो बायोसेंट्रिक है। बायोसेंट्रिक का मतलब है कि दोनों एक दूसरे का संबंध होना चाहिए, उसी को इकोसेंट्रिक भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि नेचर, वो मानते हैं खुलेआम कि नेचर है वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए मीन्स है। कांट का जो सेकंड डिक्टम है, नेवर ट्रीट द ह्यूमैनिटी आइदर इन यू और अदर पर्सन एज मीन्स बट ऑलवेज एन एंड। ये सब क्यों है? पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने के साथ साथ पूरे हमारे व्यवहार में है। हम उतारे तब तो हम तो यही फिलहाल कर सकते हैं। एक हमारे क्या कहते हैं, गुरु जी थे हमारे द्विवेदी सर, हमारे भी रहे हुए, वो कहते थे यार देखो ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या तो जो इंटरेस्ट ले रहा है वो कमी निकालेगा, और जो नहीं ले रहा उसको बोर होगा, और जो इंटरेस्ट वाले हैं उनको भी बोर हो, तो बहुत ज्यादा बोलने से होता है बहुत, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जो भी किया। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात कि हम साधन के रूप में जो सब चीजों को मान रहे हैं, ये दोनों विचारे चल रहे हैं कि इंटेंजिबिलिटी एक स्ट्रिंजिबिलिटी है। और अधिकांश जो डियोंटोलॉजिस्ट हैं, बायोसेंट्रिक हैं, ये मानते हैं कि भाई नेचर अपने आप में, डीप इकोलॉजी का बेस भी वही है, कार्नेनाइज का है, ये सब का है। और उन्होंने सामने बता रहे कि उन्होंने स्वयं गीता को रेफर किया है, गांधी को रेफर किया है, वेस्टर्न होने के बाद भी, और श्लोक को भी लिया है, तो याद नहीं श्लोक को सीखो। और जो उन्होंने बताया कि वहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का जो विश्व रूप होता है ना, प्रकृति और सब ह्यूमन बींग सब एक है, चाहे जिस की बात हमने कहा, तो सोल्यूशन सबका है, लेकिन मूल बात यही है कि जो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ही है। हम अपने को दोषी कहें, दूसरे को दोषी करें, जब तक उस लेवल पर नहीं होगा। अब बात है कि हो क्या रहा है, जो कुछ हो रहा है वो कम है, लेकिन कुछ जो नेगेटिव वे में हो रहा है उसे दूर करने को रोकने की जरूरत है, और जो प्लस में हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। और चेतना बढ़ी है, ऐसा नहीं है लोग पेड़ लगाने लगे हैं, काटने भी लगे हैं, लेकिन अब ये जो पब्लिक, अरे सरकारी सड़क बना रही है, पेड़ काट रही है, तो अब दोनों का विकास, इसीलिए शब्द आया ना जो उसमें फेमिनिज्म में जो पैराडॉक्स ऑफ फेमिनिज्म बात कही जाए, यहाँ भी कुछ लोगों ने इगोइस्टिक मतलब पैराडॉक्स और इगोइज्म की बात कही। वो तो ये कहता है कि भाई एज मच वी रन आफ्टर द प्लीजर, so much we miss it, जितने भागे उतने हम खोते हैं।
यहाँ भी बात कही गई है कि इन ऑर्डर टू fulfill our interest from take the resources from nature, we have to miss something, we have to sacrifice. अगर हम मान लीजिए कि खेत बोना है तो पेड़ काट रहे हैं, कुछ आम भी खराब अपना खो रहे हैं, या हम नदी नाले काट रहे हैं तो हम पानी को खो रहे हैं। कहने का मतलब कि हम अपने कुछ फायदे के लिए कर रहे हैं तो कुछ हमको त्याग भी करना पड़ रहा है। तो यह तो लगा रहेगा, डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ डिग्रेडेशन भी लगा रहेगा। उसका केवल यही है जो एंथ्रोपोसेंट्रिक भी उन्होंने कहा, सही बात कहा कि मूल तो एंथ्रोपोसेंट्रिक भी हुई है, लेकिन दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। यही एक मेरी समझ से कि जहां जरूरी हो, जिस सीमा तक जरूरी हो उतना करना चाहिए, और जो भी मेजर लिए जा रहे हैं पर्याप्त नहीं है, ठीक है, और वेजिटेरियन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको किस रूप में रोका जाए, कैसे किया जाए, ये सब चीजें हैं। थैंक यू। प्रोफेसर एसपी पांडे सर अभी कुछ कहना चाह रहे थे, आप आ जाइए सर। प्रोफेसर यादव जी को मैं हृदय से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से इन्वायरमेंटल इथिक्स पे बात आपने किया, जो मॉडर्न थियरीज है और जो विषय है। संक्षेप में, समय की सीमा थी इसलिए वो, लेकिन मैं थोड़ा नए ढंग से चीजों को सोचने का आदी हूं। मैं अपनी बात में शुरू करना चाहता हूं। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि सर पे चोट लगी है और पैर में हल्दी लगा रहे हैं। जिंदगी भर सांप से शर्मिंदा रहा यह सुनकर, जिंदगी भर सांप से शर्मिंदा रहा यह सुनकर, जब से इंसान को काटा है फन दुखता है। कौन कहता है कि सर्प काटता है, काटना भी एक कला है जिसे सिर्फ और सिर्फ आदमी जानता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम वातावरण को, हम पूरे के पूरे परिवेश को चेंज करने के जितने सारे उपकरण हो सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, जिस पर ज्यादा हमको भरोसा है, हम विश्वास करके चल रहे हैं। हम यह भी इस अहंकार में भी हम हैं कि मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान और मनुष्य से ज्यादा चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला प्राणी कोई नहीं है। अच्छे का अहंकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने किया है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत हम किनारा कशी कर लेते हैं, उत्तरदायित्व से अलग हो जाते हैं। हमने कभी ये सोचा है कि इथिक्स प्रॉब्लम क्यों है? वो चाहे इन्वायरमेंटल इथिक्स हो, मेडिकल इथिक्स हो, वैल्यू इथिक्स हो, है क्यों? इसलिए है क्योंकि हमने पूरे की पूरी व्यवस्था में, चाहे वो हमारी शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हमने मैन मेकिंग सिस्टम डेवलप नहीं किया है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोई मनुष्य को मनुष्य बनाने का कोई सिस्टम हमने डेवलप ही नहीं किया है, जिसकी आवश्यकता विवेकानंद ने महसूस किया था। और विवेकानंद ने कहा था कि नहीं, हम जब तक मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाएंगे, ये मनुष्य शायद पशु से भी बदतर साबित होगा, हमारे पूरे के पूरे विश्व मानवता के लिए साबित होगा। एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए, कोई माइंड मेकिंग सिस्टम एकदम नहीं है। सोशल सिस्टम देख लीजिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के जितने सारे सोशल सिस्टम्स थे, उन सारे सिस्टम्स को हमने ध्वस्त कर दिया। मैकाइवर पेज कहता है कि परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। हमने परिवार का स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया, नहीं रहेगा। अब नई होलिस्टिक फैमिली होगी, एटॉमिस्टिक फैमिली होगी, अब तो न्यूक्लियर फैमिली भी होगी, अब तो ऐसी भी फैमिली होगी जिसमें फादर मदर नहीं होगी मगर बच्चे होंगे। हम कहां जा रहे हैं? हमने प्रकृति के साथ जो कुछ
जो कुछ समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को हमने क्रिएट किया है। हम प्रकृति को, जो लोग इस दृष्टि से प्रकृति को देखते हैं कि प्रकृति भी क्रूर है और अपनी क्रूरता का नग्न तांडव किया करती है रह रह के मनुष्य के खिलाफ, मुझे लगता है कि यह इसलिए कहते हैं, ऐसा इसलिए ये सोच इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति में पर्सनिफिकेशन नहीं किया है। अभी जिस बच्चे ने बात किया था, अभी सवाल उठाया था लिविंग, गंगा के बारे में लिविंग होने की बात कह रहा था। जब तक नेचर के साथ हमारा पर्सनिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम अपने आइडेंटिकल उसको कैसे सोच सकते हैं कि जो जिन चीजों से हमें दुख होता है वैसा ही दुख उसको भी होता होगा। अगर एक उंगली हमारी मड़ोलने से मुझे दुख होता है तो पेड़ की एक टहनी तोड़ने से भी पेड़ को दुख होता होगा। ये तब होगा जब पेड़ के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा। प्रकृति के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति के साथ आइडेंटिफिकेशन के जितने सारे सिस्टम्स हैं, हमने वो सारे सिस्टम हमने ध्वस्त कर रखा है। दुर्भाग्य ये है कि अब जब बहुत सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं तो हम केवल इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से, हम डाल की तो बात करते हैं और ये कह भी रहे हैं, कहते भी हैं कि हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो बताइए। तने की कोई फिक्र ही नहीं है। वो तना जहां से सारी की सारी चीजें ले रहा है, एक मनुष्य जिसको मनुष्य बनाने के, जो एक हाड़ और मांस के पुतले के रूप में इस संसार में आया था, इनोसेंट होकर के जो मनुष्य आया था, आज हमने उसको ऐसा बना दिया कि आज वह न केवल प्रकृति अपने लिए भी घातक है। हमारी प्रॉब्लम यह है, जो मैं कहना चाहता हूं कि यदि संभव है तो हम दार्शनिकों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अगर हमने कोई मैन मेकिंग सिस्टम अगर हमने फिलॉसफी में डेवलप कर लिया, एक अच्छा मनुष्य अगर हो गया, तो निश्चित रूप से चाहे वह परिवार हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह राष्ट्र हो, चाहे वह प्रकृति हो, वो सबके प्रति उत्तरदायी होगा। और जब तक इस चेतना का विकास नहीं किया जाएगा और जब तक मैन मेकिंग सिस्टम हम नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हम बात करते रहेंगे और शायद ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। ईस्ट और वेस्ट के बीच इथिक्स को लेकर के, नैतिकता को लेकर के चिंतन की पृष्ठभूमि में अंतर है, फाउंडेशन में अंतर है। वेस्ट की इथिकल चिंतन का फाउंडेशन उसका दूसरा है, भारतीय परंपरा में इथिकल नैतिक चिंतन का फाउंडेशन दूसरा है, फाउंडेशनल डिफरेंसेस हैं। और अगर हम ये चाहें कि कहीं वेस्टर्न थियरीज को उसका कंप्लायंस करके हम अपने इथिकल पर्सपेक्टिव में उसका कंप्लायंस करके अगर हम सॉल्यूशन चाहें, तो ये वही होगा कि अगर दूसरे किसी जलवायु के पौधे को ला करके अगर किसी दूसरी जलवायु में आप अगर उसको डालने की कोशिश करेंगे, तो या तो वह सूख जाएगा, स्वयं भी सूख जाएगा और आपके पास कुछ हल भी नहीं निकलेगा। मेरा निवेदन है दार्शनिक संप्रदाय से, आप बच्चों से, हम सबसे, हम अध्यापक हैं, हम मैन मेकिंग सिस्टम हम डेवलप करें। और इसकी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक लोगों की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारे परिवार की हमारी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। जो बच्चा माँ की गोद से निकलकर घर के बाहर और समाज में आ रहा है, उसके माँ बाप क्या दे रहे हैं, वहीं से उसकी शिक्षा शुरू हो रही है और वहीं से वह प्रकृति के प्रति कितना उत्तरदायी है, इस बात की उसकी शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन दुखद यह है कि हम शाखाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम जड़ और तने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। प्रोफेसर डीएन यादव सर से मेरा निवेदन है, हमारे यहाँ नीति जी हैं, ये इथिक्स पे काम करनी है। मेरा तो ये फील्ड नहीं है, मैं तो केवल जो मूर्खता है वह मूर्खता ही आपके सामने मैं अपनी व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन आप लोग इस विषय में चिंतन करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें। बेसिकली कब हम संवेदनशील होंगे इन सारी समस्याओं के प्रति। धन्यवाद। तो अभी एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रमोद सर, आइए आप अपनी बात रखिए।
मेरा प्रश्न ये है कि आपने जब भारतीय संदर्भ की बात की तो ऐसा लगा कि भारत में केवल अद्वैतवादी प्रकृति और मनुष्य की अद्वैतवादी दृष्टि ही प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, और जो प्रकृति और मनुष्य का द्वैत है वहां भी इतनी ही प्रमुखता से विद्यमान है। जब आप महाभारत की बात करते तो वहां पे तक्षक नामक एक सांप को जलाने के पूरा एक वन को ही नष्ट कर देने के उदाहरण है। तो ये जो आप भारतीय संस्कृति को वेलराइज करते हैं और वेस्ट को डिनिग्रेट करने का जो वो है वो कहीं उचित नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात कहा। हमने अद्वैत वेदांत पर जोर नहीं दिया, मैंने भगवत गीता पर बात कही, आपने सही कहा। और दूसरी बात कि मैं तो कतई भी किसी को, हमने एक बात कही थी कि जो वेस्ट और ईस्ट का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना कि एक उदाहरण जो उसका मोटो हमने बताया था कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो अब कोई कहे पूरब में ऐसा है तो ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा। दूसरी बात कि मैंने कि ये कहा, मैं ये समझता हूँ, उतना हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा है कि भारतीय दर्शन जो हम जिससे परिचित हैं परंपरा में, उसके तत्व हैं। पश्चिम में उसी को नए स्वरूप में नए सिद्धांतों के आधार पर मैं कर रहा हूँ। मैंने ये भी विचार किया कि जो सिद्धांत हैं वो हम अपने पर देखें किस रूप में लागू हो रहे हैं, या हमारे यहाँ या हमारे जो भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण के तत्व हैं उसमें क्या यह सिद्धांत दिखते हैं जो नए सिरे से वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये कहा था। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई कल्चर सुपीरियर है इंफीरियर है। मेरी मान्यता ये है, मेरा व्यक्तिगत नेता कि न तो हम किसी से छोटे हैं न कोई हमसे छोटा है। ये मैंने बहुत महसूस किया है, ये फर्म कन्विक्शन है मेरा अपना। ठीक है, हाँ बेटा। बहुत समय बहुत करीब है, हम लोगों का एक दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखिए। एक प्रश्न। प्रणाम सर और धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक जिज्ञासा और बहुत तीव्र जिज्ञासा थी ये बताने की और पूछने की भी कि बात हम घर से करते हैं। पांडे सर बोले अभी तो उसी से मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पेड़ की बात छोड़ देते हैं। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, जिस पेड़ का हम हवा ले रहे हैं, जिसकी छांव में हम रहते हैं, उससे हमारा कितना तादाद में है। पहले हम इसकी बात करते हैं। इस कैंपस में इतने बिल्डिंग्स बन रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस शहर में इतना बड़ा परिसर तो कहीं नहीं है, और इस परिसर के अंदर जितने ज्ञानी पुरुष हैं, जितने बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं, किसी परिसर में नहीं रहते हैं। जब इतने ज्ञानी लोगों के सामने इसको रोका नहीं जा रहा है तो इतना बड़ा सेमिनार करने से कोई फायदा नहीं है। और जब इस परिसर को बचाया नहीं जा सकता तो सर हमें नहीं लगता कि कोई उद्देश्य है ऐसे सेमिनार का। सर बस ये मेरी जिज्ञासा थी कहने की। सर अगर कुछ गलती है तो क्षमा। अच्छा, ये कई बार पूछ लीजिए, सब एक लाइन इनका काम भी है। नाम क्या, नाम इनका? नहीं, इनका तो ये है कि बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। सर सवाल के पहले सर एक रिक्वेस्ट है गुस्ताखी माफ के साथ कि सर इस तरह का स्टडी सर्किल में प्रश्न पूछने का पहला अधिकार स्टूडेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि टीचर लोग तो आपस में मिलकर बात कर लेंगे कि हम लोग के प्रश्न फिर रह जाते हैं और हम लोग सुनते ही रह जाते हैं। सही बात ये चीज है। तो हेड सर से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के पहले स्टूडेंट्स को मिले। सवाल है सर कि चिको मेंडिस एक ब्राजील के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनका एक लाइन है कि इन्वायरमेंटलिज्म विदाउट क्लास स्ट्रगल इज गार्डनिंग। जैसे अभी अनीता जी का प्रश्न था कि बीएचयू में इतने सारे पेड़ कट रहे हैं और हम जो है इंडिविजुअल लेवल पे इथिकल होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लगता है कि अगर इथिक्स पे बात की जाए तो हर कोई खुद में इथिकल है,
हर कोई इथिकल है, लेकिन हम क्या है कि सोसाइटी को इतने सालों से इथिक्स की पढ़ाई हो रही है, इथिकल नहीं बना पा रहे हैं, चाहे हर सेंस में हो। उदाहरण के लिए यदि बात करें कि बीएचयू हम अपने बालकनी में एक मनी प्लांट और पेड़ लगाकर अपनी जिम्मेदारी से इतनी सरी हो लेते हैं कि हमने इन्वायरमेंटल काम कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि एक पेड़ आपने लगा देने से या कैंपस में पेड़ हजारों पेड़ कट रहे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो सवाल है कि क्या हमारे इंडिविजुअल सिर्फ हो जाने से सोसाइटी तो चेंज नहीं हुई, जो अब तक हमारा परसेप्शन हम देख चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर चेंज लाना है तो जो अथॉरिटी है, अगर हम इस डिपार्टमेंट में कोई चेंज लाना चाहे तो हम सिर्फ अपने पर्सनल बात करके नहीं ला सकते हैं। अथॉरिटी में हेड सर बैठे हैं, जब तक हेड सर उस चीज को पास नहीं करेंगे, उस चीज को जनरलाइज नहीं करेंगे, सबके कॉन्सेंसस में नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। कोई चीज भी लाना है, अगर एक वॉशरूम भी फीमेल वॉशरूम की बात चल रही थी बनाना है, तो वो नहीं आ पाएगा। उसी तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम बात करते हैं लेकिन देश में हजारों पेड़ कट रहे हैं, जंगल के जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं, और वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, एक गवर्नमेंट एक स्टेट कर रही है। तो अभी पांडे सर बात कर रहे थे कि हम सिर्फ पत्ती पे बात कर रहे हैं, हम जो तना और जड़ है उसको उखाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, कि उसको जड़ की समस्या है। तो हमें लगता है कि जो स्टेट है, जो राज व्यवस्था है, वो गवर्न कर रही है, वो हमें बताती है क्या करना है नहीं करना है। हम एक छोटे से पेड़ कटने से तो संवेदनशीलता दिखाते हैं, हाँ खत्म है, लेकिन देश में इतने सारे पूरे दुनिया भर में पेड़ काट खत्म कर दिए जा रहे हैं। बीएचयू में कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं बहुत सारे, और जो प्राकृतिक जंगल है उसको नष्ट किया जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और ये जब तक नहीं होगी, जब तक अथॉरिटी जो पावर है, सत्ता है, उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे, उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो हम लगता है इंडिविजुअल लेवल से बात ही करते रह जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति वो नहीं कर पाएगा। तो यही मेरा सवाल है कि अथॉरिटी को हम लोग क्यों नहीं क्वेश्चन करते, क्योंकि जितने मैं इथिक्स के रिसर्च पेपर में पढ़ता हूँ, वहां सिर्फ इंडिविजुअल पे बात होती है, कोई स्टेट और कोई बड़े संस्था पे नहीं बात करती है। बड़े बड़े क्लाइमेट चेंज हो रहा है लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है, ग्रीन हाउस गैस रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन रोज अमेरिका, चाइना और भारत बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। वैसे मेरे क्वेश्चन का आंसर लगभग मिल चुका है गुरुजी के थ्रू, लेकिन मैं सर चूंकि आपने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में बात किया इन्वायरमेंटल एथिक्स को लेकर के, तो अगर हम जेनोफिनीज की बात करेंगे तो वो एक कोट करते हैं कि अगर बैल, गाय, घोड़े या जानवरों को अगर हम उनको ये अथॉरिटी रहे और लिखने की क्षमता रहे तो वो भी अपने आप को भगवान लिखते। और दूसरी चीज की हाब्स ने कहा कि मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। तो सर चूंकि थोड़ा सा हो सकता है मैं समय ज्यादा ले लूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में बात किया और हम जब इंडियन में देखते हैं तो उसका कुछ मोटिव अलग है एनवायरनमेंट को लेकर के। तो हमें लगता है सर कि जो आपने जो एग्जाम्पल दिए या जिन फिलोसफर की बात की, तो उन्होंने एक उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को ही हमारे सामने प्रस्तुत किया एक तरह से। न तो उन्होंने नेचर सेंट्रिक बात की, न केवल हो सकता है कि ज्यादातर वो मैन सेंट्रिक बात उन्होंने किया। तो जब मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है या खुद को वो मास्टर मान लेगा हर चीज का, तो वो कोई भी नियम या कोई भी राइट की जब बात आएगी तो पहले अपने आप को सेंटर में रख के, अपने वेलफेयर को सेंटर में रख के कोई काम करेगा। तो गुरुजी ने कहा कि अगर हम उस कुत्ते के या जानवर के इमोशन को नहीं समझेंगे या पेड़ के इमोशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो वो चीजें तो वेस्टर्न की जो थ्योरी है या वेस्टर्न का जो प्रिंसिपल है उससे तो डेवलप हो नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ जो चीजें बताई गई हैं अपने कल्चर में, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट देती है। जैसे कि पौधों का पूजा किया जाता है, तुलसी पूजा या पीपल वृक्ष का या तमाम चीजों का, तो उससे एक हम इथिकली अटैच होते हैं। तो उससे हमारा एक तो सेल्फ भी जुड़ता है, दूसरी चीज की उसकी भावना को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या सर वेस्टर्न में भी कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इस तरह से रिलेट करते हो या इथिकली हमें इमोशन के साथ भी अटैच करने का कोई थ्योरी देते हो, उसको मैं जानने का प्रयास करता हूँ। आपके धन्यवाद। मैं आपको ही बता दूं, ये मैंने अच्छा बेटा मैंने एक विचार रखा, वो जो आप कह रहे हैं वो मैंने हेडोनिस्टिक विचार रखा। आप पूरा देखिए, पीटर सिंगर आज जैसे तमाम लोग हैं जो रिस्पेक्ट फॉर नेचर की बात, रिवरेंस फॉर नेचर की बात करते हैं, और यहाँ तक कि उसमें कई तरह की, इसलिए कई थ्योरीज मैंने दिया, ऐसा नहीं कि मतलब वो तो एक विचारधारा थी जो उनकी जो है उपयुक्तवादियों की या क्या कहें सुखवादियों की, वो उसकी आलोचना भी होती है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो आप लोगों ने कहा कि देखिए सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जिम्मेदारी पेड़ बचाने की नहीं है। एक सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, एक सोशल थिंकर होते हैं या थिंकर होते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी कम से कम इतना पूरा कर रहे हैं, एक अध्यापक के होने से नाते या दर्शन से जुड़े होने के नाते। दूसरी जिम्मेदारी भी हम कर सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, लेकिन समस्या है कि हमारे हाथ में है क्या। हम उन पेड़ को रोक नहीं सकते हैं, ये सामूहिक पेड़ लगवा नहीं सकते हैं,
इसलिए इंडिविजुअल जो जिम्मेदारी बात है कि हम कुछ पेड़ लगाएं। वैसे तो नियम बनना चाहिए, जितने पेड़ अगर कोई काटे या सरकार कटाए या किसी कार्यक्रम में, उतने पेड़ लगाए भी जाए ताकि उसको बैलेंस किया जाए। बेटा अभी ये बात हम तुरंत कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम कैसे उन पेड़ों को रोकें? हमारी क्या क्षमता है कि नहीं? हम इतना कर सकते हैं कि जो सिद्धांत उसको पढ़ें, पढ़ाएं, बताएं और हम अपने जीवन में लागू करें। ये हमारे हाथ में है, हमारे कि हम अपने यहाँ पेड़ न काटें, हम अपना पेड़ लगाएं। और आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन अपने हाथ में जो हो उतना किया सकता है। हाँ, और कोई? ठीक। सर मेरा ये प्रश्न है कि हम अपने जीवन जैसे कि आप बात कर रहे थे मानव केंद्रित की, कि मानव प्रकृति पे सबसे अधिक अधिकार तो मानव का है, जिसके लिए वो जितना उपभोग करता है प्रकृति का और उससे वो दोहन करता जा रहा है, पर वो प्रकृति का एक भाग है, लेकिन हम उस प्रकृति का एक स्वामी बन बैठे हैं। तो उसी में सर उसी से एक क्वेश्चन है कि हम अपने जीवन लाइफ स्टाइल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे जैसे निजी वाहन है, फ्रिज है, एसी है, इन सब चीजों के क्या अभाव में हम जीवन जी सकते हैं? क्योंकि यदि ये सब चीजें रहीं तो हमारे ये पर्यावरण में तो ये जो ओजोन क्षेत्र है उसका ये मेन रीजन है, तो क्या इसके अभाव में हम जीवन जी सकते हैं? देखिए जीवन तो हम जी ही रहे थे। मैं दूसरे क्या कहें, मैं स्वयं जो है बिना गांव में पंखे के रहते थे हम लोग, सभी लोग बहुत गए हैं। और इलाहाबाद में आए तो 4 महीने गर्मी में 15 रुपये महीने पर पंखा लेते थे हम लोग, रहते थे। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, यहाँ तक घर में भाई कि एसी ठीक होना चाहिए, जिस गाड़ी से जहाँ गाड़ी में एसी जरूर ठीक हो। तो एक तो ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं उसके बिना रह रहे थे। दूसरी एक असलियत बात यह है कि वास्तव में टेम्परेचर बहुत बढ़ा है और हमारी कमी जो क्षरण से नहीं, तो हम तो कहीं नहीं अपनी गलती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में क्या है, जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या कर सकते उतना। वही बात। ठीक है, अभी बहुत उत्सुकता है, ये लेक्चर की सफलता है और इतना उद्वेलित करने वाला और इतना व्यापक विचारों वाला व्याख्यान था कि आप सभी उत्सुक हैं, सभी प्रश्न करने के लिए उपस्थित हैं। लेकिन अभी समय, चूंकि हम लोगों को दूसरा कार्यक्रम 12:30 बजे शुरू करना है, इसलिए मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर नीति जी को बुला रहे हैं। आप आइए। थैंक यू सर। ऑलरेडी इतना समय हो गया है कि मैं औपचारिक रूप से अधिक समय न लेते हुए धन्यवाद बहुत जल्दी करूंगी। हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर प्रोफेसर DN यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे विषय पर इतना बढ़िया व्याख्यान दिया और आप सभी लोगों के अंदर इतने प्रश्न हैं। यही इस कार्यक्रम की सफलता है और इस सेमिनार की यही सफलता होती है। तो आप जो लोग चुपचाप थे वो अभी इसके बारे में बात करेंगे, आप लोग डिस्कशन करिए और आगे बढ़ाइए। और एक पंक्ति है कि बरगद एक लगाइए, पीपल रोपे 5 और घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साँच। तो इतना कम से कम इंडिविजुअल स्तर पर अगर यहाँ बैठे जो लोग हैं या जो सुन रहे वही कर लें तो बहुत चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट में। एनीवे हमारे ICPR को इस स्टडी सर्कल के लिए और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर आनंद मिश्र सर को इस इतने अच्छे व्याख्यान को आयोजित करने के लिए, हमारे सभी कलीग को इसे ज्वाइन करने के लिए और सारे पार्टिसिपेंट्स को इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए और ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कन्वीनर डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद यादव सर को विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ अभी इस कार्यक्रम की संपूर्ति की घोषणा की जाती है।